हाँ जी कर दीजिए। Okay, so good afternoon, all of you. So, welcome to today's class. Today, we will be starting with this concept of sources of business ideas. Okay, look, it's always said that whenever you decide to be an entrepreneur, it is very important for you to have a brilliant idea in your mind. Okay, because look, whenever we think about entrepreneurship, so entrepreneurs are thought as people who can creatively solve the existing problems in the society. Maybe they can bring up a new way or a new product or a new service into the market. Okay, whatever are the gaps in the market, the missing links in the market, probably they can fill that. So always in entrepreneurship, it always starts with an idea. And it's very important for us to know that when we talk about ideas, so what are the sources from where this entrepreneur can derive ideas. Okay, like as you can see, there is this opening case of Van Phillips. So let us just go through this opening case. It says that to create a cherished and a novel product, one has to raise inhibited questions. As Van Phillips queried why prosthetic limbs can't resemble like human legs. ओके तो एक प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, मतलब जिन लोगों के पैर वगैरह नहीं होते हैं तो वो आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हैं जिससे वो वॉक कर पाते हैं। ठीक है, तो वैन फिलिप्स वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर ऑफ प्रोस्थेटिक्स which were artificial limbs for humans। जो आर्टिफिशियल पैर होते हैं वो बनाता था वो ह्यूमन बींग्स के। Now, after having lost his one leg at the age of 21 post an accident at a water skiing competition, Phillips experienced the discomfort of using the artificial leg and questioned as to why the artificial leg can't be a C-shaped, more flexible length than the existing variant. Now look, उसको खुद ही ये problem हो गई, but still he was not defeated by it. Okay, he questioned, and the artificial limb that he was having, he thought that why can't it be of a C shape, something which can be easily bend and which is probably more flexible, more easy to wear. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता ये artificial limb? So look, this imagination, what happened when this thought came into his mind, this imagination, this led Phillips to eventually come up with developing an artificial limb for amputees, allowing them to spring, walk, and run just like able body counterparts. So look, like how it just started. Just think about the journey, like he himself couldn't walk, and then the idea came up into his mind. He didn't think of giving up. He thought that this is not available in the market, so let me make it available in the market. So he developed those sort of limbs, that C-shaped limb, and with the help of which people could not only stand, in fact they could run, walk, they could do all those things like other people do. So, with this, he incorporated his company Flexfoot in 1984 to produce prosthetics using a component which was called as carbon graphite. Okay, and this is his story, and you will even see that these are basically used by Paralympics as well। आपने सुना होगा अभी इंडिया ने एक गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी ये यूज किए जाने लगे। सो लुक, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन आइडिया, यू जस्ट हैव टू कम अप विद अ गुड आइडिया, एंड दैट कुड बी द स्टार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। Now, look, before we come to from where we can derive these business ideas, we need to first of all know that how do we define this term business idea. Now, look, basically, an idea means what exists in the mind as a representation or a formulation. Okay, तो idea क्या है? Idea कुछ नहीं है. It is just a thought. It is just a representation of something. It could be an absolute form, an abstract form, anything that you are having that you intend to formulate. Okay, look, it is something which you see at the cognitive level. Cognitive level in the sense that many times you think that I can do this thing, I can make this thing, this is possible. So what are you doing? You're just cognition के process में हो। आपने आपके पास कुछ बनाया नहीं है, आपने आपके हाथ में कुछ नहीं है। Everything is just happening subconsciously in your mind. So it could also be a mental image of something which you want to bring to the market,
लाइक जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा कि उसको एक लिम्ब चाहिए था, जिससे लोग चल पाए, दौड़ पाए। तो क्या होता है, उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज थी ना कि वो जो लिम्ब है वो एक सी शेप का अगर लिम्ब होगा तो लोगों को बेटर होगा उनके लिए टू वॉक, रन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, now look, there is one this very celebrated economist. He is very popular, which we call as Joseph Sumter. Okay, he said that look, an entrepreneur is basically a person who has the willingness and the ability. Both these words are very important. You should be willing as well as you should have the ability. अगर willingness है और ability नहीं है तो भी नहीं होगा. अगर ability है और willingness नहीं है, let us say you are very sharp oriented, आपका दिमाग बहुत काम करता है, but आप आलसी हो, you are lazy, you don't want to work on your ideas, then nothing can happen. So both things are important, willingness as well as the ability to convert a new idea or invention into a successful innovation. Those ideas which have a value to the investor, customer and capable of generating a revenue model for business are business ideas. Now look, हम हर किसी को business idea नहीं कहेंगे. Okay, those ideas which just come to our mind and which cannot generate profit for us, they will not be called as business ideas. Okay, any model which is capable of generating revenue for us, जो हमें पैसा कमा के दे सकता है, ठीक है, that we call as a business idea. Vivan, the class is going on. So in this concept, the case of a Japanese automobile company, Toyota, is worth mentioning. Okay, due to regular innovations and zeal to provide utility to end customers, they have emerged as pioneers in developing eco-friendly, high-quality, and safe cars for consumers. So look, obviously we all know that Toyota is a brand which we associate with quality. ओके, तो क्वालिटी क्यों है? क्योंकि जो आइडियाज लेके आते हैं, उनकी जो कार है उनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, हाई क्वालिटी देते हैं, सेफ्टी देती हैं वो कार्स. So they have done regular innovations and they have worked on their idea, and therefore even they are called as entrepreneurs. फाइन. तो देखो, जब तक आइडिया का देखो, जब भी कभी कोई आइडिया आपके दिमाग में आता है, आपको उसकी फीजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है. कभी कभार होता है कि आपको लगता है कि हाँ, दिस थिंग इज पॉसिबल, बट व्हेन यू गो टू डू इट यू थिंक दैट दिस वाज जस्ट एन आइडिया. प्रैक्टिकल में तो ये कर पाना पॉसिबल ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट द आइडिया शुड बी फीजिबल. सेकंड इज द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट. कमर्शियल मीन्स दैट पैसा भी आना चाहिए आइडिया से. ओके, इट्स नॉट दैट जस्ट द आइडिया हैज कम एंड you are okay with it. Okay, and then the viability and the innovative content. फिर आपको ये देखना है कि अच्छा चलो feasible भी है, commercial भी है, but आपको देखना है क्या viable है. क्या ऐसा जरूरी है कि if I am thinking of doing this thing, I am thinking of taking into this market, but is it viable for me to do it? Like people have come up with this concept of self driven cars. ठीक है, अब वो फीजिबिलिटी भी है, कमर्शियली भी लग रहा है कि हाँ एक बार आ गया तो हो जाएगा, बट वायबल है अभी वो? क्या वो, मतलब अगर इंडिया में हम बात करें तो क्या उसकी वायबिलिटी है, गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स दैट वी हैव सेल्फ ड्रिवन कार्स? नो. ओके, नो. सो वी हैव टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द आइडिया एज वेल. तो आपको इनको इन तीनों कंटेक्स्ट में देखना है कि वो फीजिबल है, कमर्शियल है, वायबल है और इनोवेटिव है, तो ही आप उसको बिजनेस आइडिया कहोगे, अदरवाइज आप नहीं कहोगे उसको बिजनेस आइडिया. फाइन. नाउ लेट अस कम टू फीचर्स ऑफ अ गुड बिजनेस आइडिया. अगर हम कहते हैं कि कोई आइडिया एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? Look, first is that it should fulfill a customer's need. That means whenever you are bringing anything to the market, this you talk anywhere, you talk in marketing, you talk in HRM, you talk in any commerce paper. This is the basis of any business, that whenever you're coming to the market, you are not coming to the market just with the intention of selling the product. You are coming with the intention of satisfying the customer needs, solving their problems. That is very important in today's world. Okay, you should have a clear focus. You should know that if you have to go from A to Z, then what all plans you have to make, how are you going to execute them? So you should be focused on it. Okay, you should be innovative. Obviously, when we talk about about an entrepreneur, so he has this trait of doing things differently from people. So doing things differently means that you're very innovative in your approach. Then it should be unique. Obviously, it follows. It should be sustainable. Now, look, sustainability is again very important. What do I mean by the term sustainable? It should not be something that it is a one-time affair, that we do the business once and then it's over. It
should not be like that. Okay, it should have a market, it should have a long term future, it should be sustainable. If you have to produce it, you should see into your mind that you have the resources to do it. And it has a long term orientation for the business. And lastly, no, everybody knows that it should be profitable, if not in the short run, at least in the long run. Fine. So these are some of the points. Then now prerequisites of convincing business idea. Now look, what happens is that देखो आपके पास बिजनेस आइडिया तो आ गया, बट देखो जनरली होता क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास आइडियाज बहुत सारे होता है, टैलेंट बहुत सारा होता है, बट पैसा नहीं होता। या बहुत बार पैसा होता है तो इतना पैसा नहीं होता कि दे कैन स्टार्ट विद देयर वेंचर ऑन देयर ओन। So what do they have to do? They have to convince other people of their business idea. Look, जब तक लोग आपके आइडिया से कन्विंस नहीं होंगे तब तक वो आपको पैसा कैसे देंगे? और बिना पैसा के तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता। अगर आपको आज उसका एक प्रोटोटाइप भी बनाना है, मानो अपने प्रोडक्ट का, या फिर आपको you are thinking of actually producing the product maybe in small quantity, but you need investment, na? You need funds, you need to buy a factory, you need to hire resources, you need to buy resources. So there are a lot of things, so you need money. Okay, तो अब दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे कि हमारा बिजनेस आइडिया एक अच्छा आइडिया है? ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड ओवर देयर. So first is the end user benefit. So look, first of all, whenever you are thinking about any business idea, you ask yourself this question, that what problem is my product or service going to solve? ओके, इफ आई एम सेइंग टुडे कि मैं जैसे स्विगी को भी हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि हमारे घर पे आके फूड डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, और इट इज बेसिकली अ सस्टेनेबल मॉडल। और वो लोग डिस्काउंट भी इतना देते हैं जिसकी वजह से लोग स्विगी इतना यूज करते हैं। तो आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि बिफोर दे एक्चुअली केम इनटू द मार्केट, इवन दे वर थिंकिंग दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दे वांट टू सॉल्व. So the problem that they wanted to solve was that many people, they were not offering home delivery. ओके, हर आउटलेट होम डिलीवरी ऑफर नहीं करता था, हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी करा सके। तो स्विगी ने ये पॉसिबल कराया। स्विगी ने कहा कोई भी बिजनेसमैन है, इनफैक्ट नाउ पीपल हैव स्टॉप्ड डूइंग देयर होम डिलीवरी। जो पहले डोमिनोज वगैरह, पिज्जा हट वगैरह होम डिलीवरी करते थे, उन्होंने भी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि अब हर कोई ऑर्डर ही स्विगी और जोमेटो के थ्रू करता है, ठीक है। So when you are thinking about an idea, think that will it solve any problem? मतलब क्या वो लोग एक्चुअली उसको इंटरेस्टेड होंगे यूज करने में, क्या उनको कोई फायदा मिलेगा इससे या नहीं मिलेगा, ठीक है। देन बिकॉज देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है तो यू नीड सेटिस्फाइड कस्टमर्स, ओके, एंड इफ यू गेट प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई द नीड्स और दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स, okay, which make their life easier, or they help them in any way that is possible, okay, then that is something that you have to look at. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम जनरली अपने बिजनेस टर्म में यूएसपी कहते हैं, दैट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कि अगर आप कोई आइडिया या कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, कोई सर्विस मार्केट में लेके आ रहे हो, तो उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, बेसिकली उसका एम क्या है, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो वो क्या करेगा, ठीक है। So you should have a clarity on that. Then second is your market. Now look, any idea can succeed. Look, no matter how brilliant the concept is, no matter how nicely you solve the problem of the person, but look, you need to have a market. Okay, you need to have consumers. आपको ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट की कोई कमर्शियल वैल्यू है या नहीं है, क्या लोग उसको एक्चुअली खरीदेंगे, क्या लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करनी है। आपको ये देखना है कि अगर मैं आज मानो स्विगी का मॉडल लेके आ रहा हूँ, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लेके आ रहा हूँ पहले, तो मेरी टारगेट मार्केट क्या है, कौन लोग ऐसे हैं जो इजिली इस पे मेरा शिकार बनेंगे। तो इट वाज द यंगर जनरेशन which was easily succumbed to it because they saw that a lot of convenience and ease in using the apps, plus they are very very super friendly with mobiles and everything. So they saw that we have a very very easy market. We have these teenage people who who are fond of eating outside food every day, and they're looking for these delivery options. So you need to see that there is a market for the product or not. Then third is the revenue mechanism. Now look, you are taking your idea to an investor, okay,
So you are telling about the product, you're telling about the market, but what is he interested in? वो आपको पैसा देगा तो पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट चाहेगा ना, कुछ कुछ डिविडेंड चाहेगा, कुछ चाहेगा वो कि वो ये नहीं कहेगा कि मेरे को मैंने 1 करोड़ दी तो मुझे 1 करोड़ ही वापस मिल जाए. ही वुड वांट सम रिटर्न ऑन इट. Okay, so you would definitely want to know that what is your revenue making mechanism. Okay, maybe in the short term you are saying you cannot make profits, but in the long term you are saying you can make profits. Then you need to tell them, you need to explain them properly that how your business is going to generate revenues for them. Okay, now let us come quickly to अच्छा. इसमें ना रेवेन्यू मैकेनिज्म के साथ ना आजकल एक और चीज आ गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है इट शुड बी सस्टेनेबल. Okay, so you should keep this into mind that it should be a legal business. सोशली सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहिए और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो बैन हो जाते हैं बिकॉज दे आर कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट. So like you will see a lot of businesses, they are being shifted from Delhi to other backward regions. Why? Because they're creating a lot of pollution in Delhi. Okay, and as you can see, like the winters are approaching, एंड केजरीवाल जी ने भी बोला है कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है. तो आपको देखना है कि क्या आपका जो बिजनेस है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो इलीगल बिजनेस है. आपने सोचा कि मैं तो एक वेपन बनाऊंगा, ठीक है, AK-47 से भी ऊपर का वेपन बनाऊंगा और उसको बेचूंगा. This is not a legal business. You can't think of doing these type of businesses. Okay, so you have to keep that thing also into mind. Now, let us come to sources of business ideas. Now, look, from where can you look for business ideas? अगर एक entrepreneur है, उसके दिमाग में अगर खुद आइडिया नहीं आ रहा या फिर अगर आ भी रहा है तो कहाँ से आ रहा होगा ना वो आइडिया? कहीं से तो आ रहा होगा. Like there must be something that must be triggering that idea in his or her mind. So, look, what are the things that can be there? So, the first is look, economic scenario. Now, look, the changes in economic trends, the shift in people's preferences, introduction and withdrawal of products and services, rising income level of population. These are basically, some of the things that you need to watch out. Why? Because they're creating opportunities for your business. Okay. Look, now what happened was that अब IBM की अगर हम बात करें, all of you know that IBM is a big software company. Okay, IBM के softwares हम सब use करते हैं, हमारे systems generally IBM के processor पे ही चलते हैं. तो IBM ने जब इंडिया से एग्जिट करा 1970s में, तो जो अजीज प्रेमजी थे उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप आ गया एक IT इंडस्ट्री में. ये एक बड़ी कंपनी चली गई है, अब इसके बिना इंडिया का गुजारा नहीं है. तो उसने ये सोचा कि ये गैप फुलफिल करने का तरीका क्या है कि मैं अपनी एक कंपनी बनाता हूँ और मैं जो काम ये IBM करा था ना ये काम मैं करके दूंगा. ठीक है. तो दे कैन बी एनीथिंग दैट माइट एक्चुअली मोटिवेट यू. ओके. देन सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया नेचुरल रिसोर्स आपको मिल जाता है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. ठीक है. गवर्नमेंट बहुत बार कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स देती है कई इंडस्ट्रीज को थ्राइव करने के लिए. जैसे अगर अभी आप बात करो तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्लान्स बनाए हुए हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे स्पेशल स्टार्टअप स्कीम्स निकाली हुई है. तो गवर्नमेंट की आप स्कीम्स देख के यू सम आइडिया कैन कम टू योर माइंड दैट मे बी आई कैन स्टार्ट दिस बिजनेस. Then entry of foreign partners. फिर अगर foreign partners maybe they are thinking of entering into the market and they're looking for a collaboration. Many times the thing happens that they want to enter into a joint venture. वो अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते किसी फॉरेन कंट्री में, वो चाहते हैं जॉइंट वेंचर हो किसी इंडियन फर्म के साथ, किसी इंडियन कंपनी के साथ. तो उस तरह की चीजें आप देखो कि क्या कोई सेंस बन रहा है. ठीक है. देन एक्सेसिबिलिटी ऑफ चीपर एंड क्लोजर सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज. क्या ऐसा है कि कोई रिसोर्स आपको बहुत चीप रेट पे मिल सकता है मे बी. ठीक है. या आपको बहुत इजीली अवेलेबल है. तो these are some of these ideas which give idea to the entrepreneur कि मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. ठीक है. तो जैसा आप सब लोगों ने एक स्टोर के बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चुंबक.
ओके इसके बहुत सारे स्टोर्स हैं आई थिंक इफ यू गो टू लाइक गुड़गांव एंड लाइक इफ यू गो टू एयरपोर्ट्स you will find the store called as Chumbak. Now look, if I talk about this was basically started by a lady. Okay, now if I talk about this brand, you know what motivated her to start this brand? She had this मतलब she was a lot into foreign travel. अब देखो होता क्या है कि हमारी भी आदत है, अगर हम चाहे फॉरेन ना जाए, मानो हम वैष्णो देवी क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम हमेशा ना कोई एक छोटा सा गिफ्ट लाने की कोशिश करते हैं अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए. मे बी इट कैन बी अ की चेन और some sort of a name plate or maybe a cup or something. We try to bring it for our relatives. Okay, but look, what you will find is that when you go abroad ना, तो वहां पे वो लोग अपने देश की ऐसी चीजें एग्जिबिट करते हैं एयरपोर्ट्स पे और वो बेचते हैं, अच्छे अच्छे दाम पे बेचते हैं. ठीक है, जो कि उनका आर्ट, उनका कल्चर, उनका हेरिटेज रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो बहुत लोग आते हैं वहां पे, वो की चेन्स लेंगे, मास्क लेंगे, कुछ लेंगे, या फिर लेट अस से यू आर गोइंग टू सिंगापुर, तो वहां पे वो लायन बड़ा फेमस है, तो वहां से वो लायन दे वुड वांट टू ब्रिंग इट बैक, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रिज मैग्नेट और इन द फॉर्म ऑफ अ शो पीस और समथिंग लाइक दैट. नाउ व्हाट शी सॉ वाज दैट इंडिया के केस में ना ये मिसिंग है. अगर कोई बंदा इंडियन एयरपोर्ट पे आ रहा है ना, तो हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है. मतलब दो इंडिया इज वी आर कल्चरली सो रिच, वी हैव सच अ बिग हेरिटेज, हमारे तो हर स्टेट में इतनी वैरायटी है, मतलब ऐसी चीजों की, एवरी स्टेट डिफर्स, वी हैव सो मच ऑफ वैरायटी. तो उसने इस चीज को बेसिकली कंसेप्चुलाइज किया एंड देन शी केम अप विद दिस ब्रांड चुंबक with the intention that if people are coming to India, okay, and they want to take anything which is a part of India which resembles India, like probably they want to take a Taj Mahal or whatsoever they want to take, तो वो जो भी लेके जाना चाहते हैं वो इंडिया का हेरिटेज दिखाएं, इंडिया की वैल्यूज दिखाएं, इंडिया का कल्चर दिखाएं. एंड शी स्टार्टेड विद अ ब्रांड एंड दैट हाउ सक्सेसफुल इट इज नाउ. ओके, देन नेक्स्ट इज सोसाइटल चेंजेस. ना देखो होता क्या है बहुत बार कि हमारी पॉपुलेशन में ही बहुत चेंज आ जाता है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाता है. तो जैसे अगर आप 10 साल पहले की बात करो और आज के बारे में बात करो, तो आप ये देखो क्या दैट दैट द that we have more of a working population. People they want to go more into service, less into business. Okay, the percentage of women who have started working has increased. Okay, now look, what happens is that when such societal changes they happen, the kind of clothes we wear these days, the kind of things that we use, the kind of food that we eat, it has all undergone a rapid change. Okay, but look, when such changes happen in the society, they are again creating opportunities for entrepreneurs. Okay, look, as women are joining more workforce, so फिर जैसे देखा कि अब ज्यादा से ज्यादा विमेन जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं. ठीक है, ऑटो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे उबर और ओला ने अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने अपनी राइड्स लॉन्च करी, उन्होंने बोला कि देखो कितना कन्वीनियंट है, ऐप पे आप बुक करो, घर के नीचे ही कैब आएगी और सेफ्टी भी ऑफर होगी. ठीक है, सो if they would have come up with this concept 20 years earlier, do you think it would have been successful? The answer is no, not at all. Okay, आज की अगर हम जनरेशन देखें, आज की अगर हम डिमांड्स देखें, तो आज की डिमांड्स के हिसाब से it is important for us to have these type of services. ओके, अब ऐसे ही अगर आप देखो आजकल कुक्ड फूड की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है. पीपल वांट टू हैव रेडीमेड फूड, मोर ऑफ रेडीमेड फूड. वी वांट टू हैव मोर ऑफ डिश वॉशर्स, स्पेशली विद कमिंग अप ऑफ द कोरोना पैंडेमिक. सब लोग बर्तन धो धो के दुखी हो गए थे. दे वर थिंकिंग दैट व्हाई नॉट हैव अ डिश वॉशर and wash our utensils in the dishwasher itself, like it happens in the developed countries. Okay, तो सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको उनका ध्यान रखना है. जैसे आजकल लोगों का एक और नया इंटरेस्ट आ गया, पीपल विद कमिंग अप ऑफ द पैंडेमिक, दे हैव दिस स्पेशल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हेल्थ. सो एवरीबॉडी वांट्स टू बी हेल्दी नाउ. ओके, तो दिस हैज रियली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दैट सेगमेंट. तो जैसे अगर आप कल्ट के बारे में बात करो, तो कल्ट ने अपना पूरा फिटनेस लॉन्च किया और उन्होंने अपना सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया. ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट जस्ट पे अ फीस, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू ऑनलाइन. बहुत चीजें उन्होंने दे दी हैं जिन लोगों को हेल्थ की तरफ जाना है. ठीक है, तो इस तरह की चीजों से आपको रूबरू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपॉर्चुनिटी सेंस कर पाओ. ठीक है,
Then next is technical inventions. Now look, this is so the heart of the entrepreneurship segment these days. आप देखो technology जो है day by day it is increasing. Okay, nobody would have thought 2 years back that classes would be happening in online mode, that too on a software like Microsoft Teams. Okay, nobody had heard about Zoom. Nobody had heard about Google Meet. ओके, तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा बूम क्रिएट करा है. अब आज बायजूस के बारे में बात करो, बायजूस का मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज स्काई रॉकेटेड. Why? Because people have stopped, children have stopped going to schools. People want an alternative. कहाँ से पढ़ाएं बच्चों को, स्कूल में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, समझ ही नहीं आता. So they have resorted to Byju's. There are so many online platform companies which have come up, with just this intention of teaching students. इंग्लिश नहीं आती बच्चों, चलो बड़े बच्चे तो तब भी कहीं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे, छोटे बच्चों को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इफ दे डोंट गो टू स्कूल, हाउ विल दे लर्न हाउ टू रीड राइट? बहुत मुश्किल है. तो आप देखोगे कि एजुकेशन सेगमेंट में इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट हैज हैपेंड ओवर देयर. तो आपको अब यहाँ पे देखना है कि जब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है, तो जैसे हमारे मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे उन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है, जहाँ पे अगर आपको कोई आइडिया है विच इज इन रिलेशन टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी, देन यू आर गिवन हेल्प, financial help as well as technical help by the government of India. Okay, so you need to really be at the front line. Similarly, अगर मैं बात करूं और अगर आपको जैसे IoT के बारे में बात करनी है, so one more important thing which I observe is coming up of the smart watches. Okay, so you will see now that everybody is wearing a smart watch, basically to measure their vitals, like their BP, their heart rate, and or whatsoever. So everybody wants to have a fitness watch. Okay, एंड स्पेशली अब आपने देखा है कि हर किसी के पास अलेक्सा होना या गूगल होम होना जरूरी हो गया है. ओके, वी वांट ऑल दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अब मूवीज के लिए अगर हम बात करें, तो अब हमने वो डीवीडी वगैरह सब छोड़ दिया. वी ऑल आर एडिक्टेड टू नेटफ्लिक्स एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोज एंड एवरीथिंग. So technologically, there has been a very big shift, and it has created a lot of opportunities for entrepreneurs. Like all these companies, like Netflix. If I talk about Byju's, if I talk about companies, like Fitbit and all these, who are manufacturing fitness watches, they all are these new age entrepreneurs who are basically thriving by exploiting the technological inventions that are happening all across the world. Fine. देन नेक्स्ट इज लिसनिंग टू कस्टमर्स. अब देखो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत बार ना कस्टमर ही आइडिया दे जाता है, बहुत बार कस्टमर ही बोल जाता है कि आपके ना प्रोडक्ट में ये खामी है, आप एक काम करो, आप इसको इम्प्रूव कर लो, आप बेटर हो जाओगे. ठीक है. So sometimes it is important that you really take the feedback from the customer, and after taking the feedback, you really analyze it and see that how can you make an improvement. Okay, sometimes the customer only comes and tells, he says that you're so excellent at providing these services, why don't you start selling the other thing as well? Okay, you will make very good profits, we will definitely buy from you. तो होता है बहुत बार, कस्टमर ही आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया दे जाता है कि it can turn your fortunes around. So that is one thing. Then the next thing is market research. Now look, this is again very important, but generally big companies, they go for market research. छोटे level पे देखो generally लोग नहीं जाते market research के लिए. Market research देखो बहुत ज़्यादा important है, because उसी से आपको ये पता चलता है कि लोगों के changing preferences क्या हैं, उनके habits क्या हैं, उनके dislikes क्या हैं, क्या नई सर्विस वो चाह रहे हैं, क्या नई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, कैसे हम उस गैप को फिल कर सकते हैं मार्केट में. तो big companies, they have this department called as market research, whereby they keep on studying the needs and the patterns of the people, and they keep on innovating and bringing new type of products to the market. So this is in fact done by companies like Maruti, even like Apple, Google. Okay, they all are into it. You talk about shopping companies, online shopping companies, Myntra, Amazon, all of them, they all do market research. ठीक है. नाउ बिजनेस एक्सपीरियंस. नाउ लुक, ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस एक्सपीरियंस भी बहुत बार आपके काम आता है. अगर आप बहुत साल से बिजनेस में हो, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ वर्किंग इन द बिजनेस इटसेल्फ, you have access to certain form of ideas. Okay, and you can really do something. You can
बेसिकली थिंक ऑफ समथिंग इन दैट स्फीयर. मानो आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और आपका सप्लायर आपको अच्छे मानो रॉ मटेरियल नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आया, आप कहो कि ये रॉ मटेरियल ये इतना बेकार दे रहा है और इतना ज्यादा दाम पे दे रहा है, इससे अच्छा तो ये कि मैं भी मैं ये रॉ मटेरियल खुद ही बनाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है. In fact, I can supply it to other people, and maybe I can do it at a lower cost. Okay, so these type of things, they happen. So they happen because you're already there in the business, you have the experience, so you can take these sort of decisions. So this is again one thing that you can do. Then the other is self assessment. Self assessment में क्या है, ये तो आपका अंदर का ही process है कि आपके अंदर से आपका innate creativity, the creativity that you have, your own brain, by looking at a magazine, reading an article, you are developing an idea. Okay, you are thinking of coming up in the market with a new product. Okay, so if you have that type of this is basically introspection. ठीक है, कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपना इन्वायरमेंट देख रहे हो, और फिर अपने ही टैलेंट और स्किल के बेसिस पे आप एक नया आइडिया लेके आने की कोशिश कर रहे हो. तो उस बेसिस पे अगर आप आइडिया लाते हो तो दैट इज बेसिकली योर सेल्फ असेसमेंट. फाइन. Then the next is scientific approach. Now look, scientific approach में क्या होता है कि बहुत बार entrepreneurs जो है वो कभी कभार ना इन्वेंटर्स भी होते हैं, मतलब दे कीप ऑन इन्वेंटिंग समथिंग और द अदर. ओके, तो जैसे जब थॉमस एडिसन, हमको सबको पता है कि जो लाइट बल्ब हमें मिला है, जो ये बिजली हमारे घर में आती है, ठीक है, ये थॉमस एडिसन जी की वजह से आती है कि उन्होंने ये इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, और उन्होंने 10,000 बार बनाने की कोशिश की थी और ही फेल्ड. ओके, so he basically wrote a book whereby he told people that what are the 10,000 ways in which you should not create a light bulb. Okay, so despite having so many failures, it did not stop him, and he still created it. तो कई लोगों का साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, तो अगर आपका उस तरह का बेंट ऑफ माइंड है तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट आइडियाज, पीपल लाइक न्यूटन, थॉमस एडिसन एंड ऑल ऑफ देम. Okay, then you have government programs, policies, initiatives, and political changes. I think this we have already discussed above. This is a repetition. Okay, अगर government ही बोल रही है कि आप इस area में आओ, और हमें जैसे एक time था 10 साल पहले कि government boost दे रही थी IT sector को. It was saying that we want to make India as the IT capital of the world. तो आईटी में बहुत बूस्ट दे रही थी कंपनीज को, आईटी में आप आओ एंड यू डू एनीथिंग इन आईटी, वी विल हेल्प यू आउट. ठीक है, हम टैक्स नहीं लेंगे, जीएसटी माफ कर देंगे, एक्साइज नहीं लेंगे, और पता नहीं क्या क्या सब्सिडीज देंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, सब कुछ देंगे. तो अगर गवर्नमेंट ही उस तरह का कुछ इम्पेटस दे रही है तो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर आल्सो दैट प्रोबेबली यू कैन सेट अप अ बिजनेस लाइक दैट, लाइक इट हैपेंड विद अजीज प्रेम जी. Now traveling. Now look again, by traveling, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट ट्रैवल करके आपको बहुत बार आइडियाज आते हैं, तो आप क्या करते हो कि जो फॉरेन मार्केट में चीजें हैं आप उसी को रेप्लिकेट करके अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ले आते हो. तो अगर आप बात करो जैसे क्यूजीन्स की, इफ यू टॉक अबाउट इटालियन क्यूजीन दीज डेज, ओके, सो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द क्यूजीन इज समथिंग which has been brought from Europe itself. ओके, तो आप वहां पे जाते हो, आप वहां की कोई चीज आपको अच्छी लगती है, आप वहां से उठाते हो, आप कॉपी करते हो. अब सिमिलरली आप इंडिया में देखो, जैसे 5D मूवी टेक्निक है, 5D वाज नॉट इन्वेंटेड इन इंडिया. Okay, it was something which was invented abroad. People just saw that it is doing good abroad. People want to experience 5D, so they brought the same movie experience to India as well. Okay, so it can do that for you. देन मास मीडिया, तो देखो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रखते हो, टीवी देखते हो, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, तो वहां से भी आपको बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर वेंचर क्रिएट करना चाहिए. ठीक है, फिर बहुत बार कस्टमर की कंप्लेंट. Look, if the customers are constantly complaining on your product or your service, then again it can be a source of idea for you that probably you should come up with a new product or a new way of servicing them, so that you become better in the market. So that can again be one thing. Then expos and trade shows and exhibition. अब देखो बहुत बार क्या होता है कि कई business opportunities ना हमें ट्रेड शोज या एग्जीबिशंस में जाके मिलती हैं. ठीक है, तो मानो एक लेट अस से यू गो टू द ऑटो एक्सपो. ओके, ऑल ऑफ यू नो ऑटो एक्सपो लगता है प्रगति मैदान में दिल्ली में.
तो मानो वहां पे कोई आप देख, आपको पता है कि एक नई तरह की गाड़ी आ रही है, ठीक है, और लाइक यू आर इनटू लेट अस से कार एक्सेसरीज, ओके। आपको ये लगता है कि इस वाली कार के अंदर ना मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं ना कोई रख रेड पिंक ग्रीन वाली लाइट बनाऊंगा, और अगर ये इस गाड़ी पे लगा देंगे ना ये बड़ी अच्छी लगेगी और ये बहुत बिकेगी मेरी, ठीक है। और you think that the car is too big, and people might want an additional camera maybe at the back or in the front, something like that, you have that idea in your mind. तो बहुत बार होता है कि by going to these exhibition and trade shows again, you can gather ideas, you get to know that what are the new products maybe that are coming into the market, and how can you make them better, or how can you बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि आप खुद ही उसके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बन जाओ और आप ही वो प्रोडक्ट मार्केट में ले आओ, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज सर्वे, सर्वेज आर लाइक योर मार्केट रिसर्च ओनली, फाइन। Now, I will just quickly come to techniques of generating business ideas. So, look, there are a lot of techniques, via which you can generate business ideas. So, look, the one of the techniques to generate business ideas is called a scamper. अब ये scamper क्या होता है? देखो, scamper is basically, it is a technique for generating ideas. तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, आप ये देखते हो कि क्या आप अपने प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कम प्रोडक्ट को, दो प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके हम एक नया प्रोडक्ट बना ले? क्या आप उसको अडेप्ट कर सकते हो? अडेप्ट इन दी सेंस कि क्या आप उसको कॉपी करके कुछ और निकाल सकते हो? क्या आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो? मॉडिफाई इन दी सेंस कि मानो उस प्रोडक्ट में अभी 4 फीचर्स हैं, आप उसमें एक छठा फीचर डाल दो या पांचवा फीचर डाल दो, मॉडिफाई कर दो उसको थोड़ा सा, ठीक है, लेके आ सकते हो। कैन यू पुट इट टू एन अदर यूज? ओके। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि उसका एक ऑल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है। आप अगर वो ऑल्टरनेटिव यूज दे देते हो तो दैट कुड बी वन थिंग, ओके। देन एलिमिनेट, बहुत बार ऐसा होता है कि समटाइम्स बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन थिंग्स इन द प्रोडक्ट, you can sell it, even that happens, okay, by making it simpler, वो भी हो सकता है। और एक होता है ये रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये कि आप पूरा प्रोडक्ट को खोलोगे, उसके अंजर पंजर एक एक चीज, यू विल रिवर्स इट, यू विल सी हाउ इज इट मेड, and then you will try to make something of that sort again, okay. So this is one of the techniques of generating business ideas. तो बहुत बार ना business ideas हम ये techniques लगा के generate कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका brainstorming. Look, brainstorming is like, all of you know, I think all of you must have heard about brainstorming. It's just that you are collecting a large number of participants. Okay, you are arranging them in a formal setup. You are presenting them with a problem, and then you are telling them that whatever idea comes to your mind, however bizarre it might be, however bizarre it might sound. Okay, you just give us the ideas. Just give us the ideas. Whatever is coming to your mind. So that is brainstorming. तो brainstorm आप करवा सकते हो। देन थर्ड इज माइंड मैपिंग। नाउ लुक, अच्छा हाँ, एक चीज और, ब्रेनस्टॉर्मिंग में अच्छा बुलाओगे किसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए? तो देखो, बुलाने के लिए आप कस्टमर्स को बुला सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स को बुला सकते हो, जर्नलिस्ट को बुला सकते हो, किसी मार्केट एक्सपर्ट को, जो एक्सपर्ट्स है फील्ड में उनको बुला सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को बुला सकते हो, ओके। So sometimes these people, when you give them the freedom to talk whatever they want to talk and think out of the box, okay, you get brilliant ideas. So this is a technique which is used by a lot of companies, fine. Then next is your mind mapping. Now look, mind mapping is basically a graphical technique which is said, ये अभी recently आया है. So this is developed by Tony Buzan, who is a UK researcher, जिसने बोला कि हम लोग, हम इसमें क्या करते हैं, दिस इज अ टेक्निक इन विच माइंड इज प्रोवोक्ड टू इमेजिन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट आइडियाज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक आइडिया को लिखेंगे और फिर कुछ लाइंस कर्व्स बना के ना उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, आई हैव अ कस्टमर एंड आई हैव अ कार, ओके, एंड आई हैव लेट अस से सम यूनिक फीचर दैट आई वांट। तो हम उनको कुछ आइडिया बताएंगे, कुछ एक बेसिक प्रेमिस बताएंगे,
और फिर ये बोलेंगे कि आप ये देखो कि आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्या सुधार ला सकते हो, इसको कैसे बेटर कनेक्ट कर सकते हो, इनके बीच में रिलेशनशिप और कैसे एनहांस हो सकता है। तो बेसिकली ग्राफिकल टेक्निक। सो ये जो है, ये माइंड मैपिंग आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर एक्चुअली, पीपल आर एक्चुअली लर्निंग हाउ टू डू माइंड मैपिंग. It is a technique. It's not that easy to do. Okay, so this is being formally taught, in fact, and a lot of people are doing it. Because the ideas that you generate after doing mind mapping are very very excellent, and you get something concrete out of it. Then next is focus groups. अब देखो focus groups में क्या होता है कि देखो focus groups में क्या होता है कि देखो जैसे brainstorming के अंदर तो आप उनको बोलते हो कि you can talk about any topic, you can go as bizarre as you want, you can go out of the box, चाहे आप out of line जा रहे हो, बिल्कुल आपका आइडिया कंपनी से कोई रिलेशन ही नहीं है तब भी आप सुने जा रहे हो. फोकस ग्रुप में ऐसा नहीं होता. फोकस ग्रुप के अंदर आप एक मॉडरेटर बिठाते हो ऐसे सेशन के अंदर, and you ensure that whatever deliberation or whatever talking or whatever idea generation is happening, it is happening around that topic around which you want the idea. So the moderator, as soon as you deviate from the track, he is going to intervene and he is going to say that you are deviating, and he's going to get you back on the track. So it's something like that. Okay, then you have is problem inventory analysis. देखो, प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस इज लाइक अ फोकस ग्रुप मेथड ओनली, बट इसके अंदर ये है कि ऊपर वाली टेक्निक में हम सिर्फ आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, नीचे जो है हम लोग ये भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स वो हो सकती हैं. ठीक है, तो देखो इसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर जनरली दो स्टेप्स हैं, एज यू कैन सी. So one is providing customers a list of specific problems in a general product category. ठीक है, तो पहला क्या है कि आपने कस्टमर्स को बताया कि ये जनरल जनरल प्रॉब्लम्स है, मानो मेरा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, कस्टमर्स को क्वालिटी कम अच्छी लग रही है, सम जनरल कंसर्न्स. ओके, you tell them and that's it. Second is you identify and discuss the products in the category that suffer from the specific problems. अब अगर आपको ये लग रहा है कि सेकेंड स्टेज में आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठाते हो और आप जनरल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, आप कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करोगे जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में आ रही है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. ठीक है, सो लेट अस आजकल गुड नाइट के बारे में अगर हम एग्जांपल लें तो ठीक है, गुड नाइट क्या करती है, आप जला दो मच्छर तो मरते ही नहीं है गुड नाइट जला के. So what is it? It is that the product has become ineffective. This is a specific problem to the product itself. There is no problem, not a problem with applying ointments and applying stickers. They all are working fine. Only those good nights are not working. तो क्यों नहीं वर्क कर रही है, तो अगर इसके ऊपर कुछ डेलिब्रेशन चाहिए, you want to generate some ideas or something like that, तो that could be one thing. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द अगेन एग्जांपल्स. ठीक है, तो इसमें इसी में मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया हुआ, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ऑन योर ओन बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द चैप्टर. ओके, so you can just have a look at it on your own. I will just quickly go through it. Now look, सिनेटिक्स एक और एक आइडिया जनरेशन की टेक्निक है. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम बेसिकली एक ना रैशनल मैनर में प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं. हम एक क्रिएटिव प्रोसेस यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली we try to solve the problem in a little bit of creative manner. ओके, तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी वगैरह यूज की जाती है और एक थोड़ा सा अलग सा ये तरीका है जिसके अंदर हम बहुत क्रिएटिव होके लोगों को प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते हैं, वी ट्राई टू ब्रिंग देम टू अ कंक्लूजन. तो उस तरह से करके स्टोरी बोर्डिंग करके, आजकल जैसे आजकल चल गया है, एंड देन देयर इज दिस स्टोरी टेलिंग करके. तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई है या उस ऐसे करके हम लोग आइडियाज जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं. सिमिलरली स्टोरी बोर्डिंग है. स्टोरी बोर्डिंग में हम क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, एक स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उसको समझ पाए और फिर अपने आइडियाज दे पाए. रोल प्लेइंग क्या होता है, रोल प्लेइंग ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट रोल प्लेइंग के अंदर आप का जो भी प्रॉब्लम है तो यू एक्चुअली इनैक्ट इट.
So you will have 2 3 people who will be playing the roles, and who will be showing that this is the problem being faced by the product, and then you will ask people to give their opinions. So it is like that. So instead of telling them orally what you are doing, you are enacting the problem and showing it to the group and then asking for their ideas. फिर बेटा कस्टमर एडवाइजरी बोर्ड्स हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो. एट्रीब्यूट लिस्टिंग आप कर सकते हो, जिसके अंदर अगर कोई फीचर इम्प्रूव करना है तो यू जस्ट राइट डाउन दोज एट्रीब्यूट्स एंड देन यू कैन थिंक ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट. Then there is this technique which is called as morphological analysis. Now look, morphological analysis के अंदर क्या होता है कि you are trying to identify that अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, ठीक है, और उसके आसपास के एस्पेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है. तो आप इस तरह की चीजें स्टडी करने की कोशिश करते हो. तो देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है. Imagine the problem is transporting an object from one place to another by way of a powered vehicle. Now, the significant dimensions are the kind of vehicle, the power source, and the medium. Thus, a cart kind of vehicle moving over rough surface with an internal combustion engine to power is an automobile. The exception is that it would be possible to determine some novel combinations. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बेसिकली ये सोच रहे हो कि हमें एक चीज को दूसरी एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्हीकल्स को लेके, ठीक है. आपके पास अलग अलग व्हीकल्स के अलग अलग पावर सोर्स हैं, ठीक है. कोई इलेक्ट्रिक मोटर पे चल रहा है, कोई कंप्रेस्ड एयर पे चल रहा है, और आपके पास अलग अलग मीडियम्स हैं. रोड का मीडियम है, एयर का मीडियम है, वाटर का मीडियम है. तो यू ट्राई टू स्टडी की प्रॉब्लम क्या है. आप हर चीज के इन सब एस्पेक्ट्स जो अभी हमने डिस्कस करा, आप सबके बीच में रिलेशनशिप्स बनाओगे, और आप एक कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करोगे जो कि आपकी प्रॉब्लम को बेस्ट वे में सॉल्व करे, ठीक है. Then there is this technique which is called as forced relationships. Now look, this is this is again a new technique. तो इसके हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच अ स्मार्ट वॉच क्रिएटेड बाय एप्पल इंक while combining the features of a traditional watch with other real-time applications offers a novelty to its users. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर देते हो, या बेसिकली दो अलग अलग चीजों को उठा के आप एक नया प्रोडक्ट बना देते हो, तो वो जब होता है नया प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसे हम फोर्स्ड रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की, तो इलेक्ट्रिक कार्स भी तो वही है ना, कि आपने कार का कंसेप्ट उठाया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट उठाया, दोनों को जोड़ दिया और आपने हाइब्रिड कार बना दी, ठीक है. तो इस तरह की चीजें यहाँ पे आती हैं कि कैसे हम दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके कुछ नया बना सकते हैं मार्केट के लिए. Then you have is reverse brainstorming. Reverse brainstorming में उल्टा किया जाता है. Okay, जो brainstorming में किया जाता है उसका उल्टा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है. You can again read this on your own. This is again very very simple. Fine. Okay, now identifying business opportunities. I will just quickly do this. Identifying business opportunities as well. नाउ लुक, अब हमने सीख तो लिया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ सकती हैं, क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट एक्चुअली हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है. सो वी विल जस्ट रीड दिस आउट. Look, unless ideas are recrystaled into commercial viability, making it a lucrative business opportunity, the chances of such an idea converting it into real business proposition are low. अब देखो आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है, बट उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है या नहीं है. देखो बहुत आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, बट ऐसे बहुत कम आइडियाज होते हैं जो एक्चुअली रेवेन्यू अर्निंग होते हैं, ठीक है, जिनकी कमर्शियल वायबिलिटी होती है. तो opportunities are the prospects of making advances, improvements either in the product or services or processes, okay, by whatever way they are happening. So look, if you have to identify a right business opportunity, okay, so an entrepreneur should basically follow some steps.
सो व्हाट आर दोस फर्स्ट स्टेप्स? सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट इनएफिशिएंसीज। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप एक मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑलरेडी उस मार्केट में क्या इनएफिशिएंसी है, मतलब क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, कैसे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कस्टमर की नीड्स को ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप उसको स्टडी करो and then you try to come up with an idea with the desired resources and the capability to correct those inefficiencies in the market. Fine. Then next is your key hassles. Now look, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एक नया प्रोडक्ट या सर्विस ही लेके आना है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ले आते हो या एग्जिस्टिंग सर्विस में इम्प्रूवमेंट ले आते हो तो वो भी दैट कैन ऑल्सो बी अ न्यू थिंग फॉर द बिजनेस। ओके, तो जैसे अगर आप बात करो कि जब याहू और गूगल वाले सर्च इंजिन नहीं आए थे तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कौन सी राइट वेबसाइट पे जाएं। कई लोग वो rediff.com एक आता था वो यूज करते थे और कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते थे। बट दे ऐसा नहीं है कि पहले सर्च इंजिन नहीं थे, सर्च इंजिन थे, बट गूगल केम अप विद समथिंग सो न्यू, मतलब दैट वाज आल्सो अ सर्च इंजिन, डुप्लीकेटेड ही आइडिया था बट वो इतना अच्छा था दैट इट फेल्ड एवरीबॉडी एल्स इन द मार्केट। तो जरूरी नहीं है हर बार की नया प्रोडक्ट ही आप लेके आओ, आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके निकाल दो तो वो भी हो जाएगा। देन एक्सपेरिमेंटिंग विद द एग्जिस्टिंग मार्केट। Look, sometimes it is necessary for you to develop a new business idea, और ऐसे मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप एक नया बिजनेस आइडिया या एक नया बिजनेस प्रोसेस निकाल ही लोगे अपनी मार्केट को सर्व करने के लिए, ठीक है। बट अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपना ब्रांड दूसरे के ब्रांड से डिफरेंशिएट करके मार्केट में निकाल सकते हो एज समथिंग न्यू, देन ऑल्सो यू कैन प्ले इन दी मार्केट। तो जैसे अगर हमें बात करें ये यूनिबिक बिस्किट्स की, ये आजकल बड़े पॉपुलर हो गए हैं यूनिबिक बिस्किट्स, क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर बेस्ड है। ये लोग कहते हैं कि हेल्दी बिस्किट्स हैं ये वाले। तो उन्होंने क्या करा है, इसने क्या करा है, जो ऑलरेडी प्लेयर्स है मार्केट में लाइक ब्रिटानिया, पार्ले, सनफीस्ट, उसको बहुत कंपटीशन दिया है। क्यों कंपटीशन दिया है? क्योंकि अब आजकल एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर हेल्थ एंड हमने इनको पोजीशन किया है एज अनहेल्दी ब्रांड्स। और दिस इज पोजिशनिंग समथिंग विच इज अ हेल्दी ब्रांड, की इसके अंदर ओट्स है, हनी है, बार्ले है, हाँ ये स्पेशल तरह के बीट से बना है, इससे बना है, उससे बना है। तो आप ऐसे भी करके अपना प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हो। इफ यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट इट देन you can obviously do a good great job. Then picking up a growing sector or industry. तो अगर आपको दिख रहा है कि कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है, कोई नया सेक्टर आ रहा है, तो जैसे with the coming up of the corona pandemic, people saw that there was a huge market in terms of masks, sanitizers, PPE kits, ventilators. So pick up the segment and just go ahead. That is again one thing. Product differentiation is again the same thing that we have already done. Okay, and I think that would be it. ठीक है, इतना I think काफी है. I would just share this file with you people. Just give me a minute. If you have any questions, you can just put them in the question and answers box. I can't see any question. Okay, just give me a minute. Okay, I will just share this file with you so that you people can read it on your own also once. And it's okay. I was just wanting somebody's number because we missed 2 classes last week. Okay, and I want to take those classes once again. So can anybody please share their number so that I can connect with you? Just one person who has touch with all the rest of your classmates. If I'm waiting on the chat group, if anybody could share the number and take the initiative of it. Okay, so I think I've already told you the books. The books are Abha Mathur that I'm following, and the other one is by the other one is by Vandana Jain. Okay,
So these are the two books that I am following. So इसमें एक book sufficient नहीं है, आप ये follow कर सकते हो. Otherwise SOL की भी अपनी book है, आप वो भी follow कर सकते हो. I'm waiting for someone to share their number. Can anybody do that so that I can just get in contact with you and I can reschedule my class? Pragya or Lena or anyone? Okay, Ayush Tyagi has shared his number. Thank you. Fine, okay. So I will get in touch with you so that I can take my backup of two classes because already the course is too much and covering it in 13 classes would be very difficult for me. Fine. So I think that would be it for today. So I'm ending the class. If you have any questions, you can post them in the Q&A box. I'm still waiting. Okay, so no doubts. Fine, then I will just leave the class. Thank you.